Hello students, welcome in your English online class. Today we are going to revise question answers of lesson number 1, 3 questions. So let us go for the question answers. Now at very first place we are having question, what were the 3 questions that occurred to the king? ऐसे कौन से 3 क्वेश्चन थे जो राजा के दिमाग में आए थे? Came into mind. Occurred means came into mind. So the answer is the 3 questions that occurred to the king were. अब 3 questions हैं, so you will use the verb were here. Now what is the right time to begin anything? Now he wanted to know about the right time to begin anything. किसी भी काम को शुरू करने का right time क्या है? He was so curious to know the answer. This was the first question. Right time to begin anything. Second is, who is the right person to listen and whom to avoid? The second question that he wanted to know the right person. कौन सा ऐसा सही पर्सन है जिसे इसे सुनना चाहिए? This was the second person. And whom should be avoided? This was the second question. And whom should he avoid? The third question was, what is the most important thing to do? The most important thing to do. Yes. जो सबसे ज़रूरी चीज़ है करने के लिए, the most important thing to do. सबसे ज़रूरी काम कौन सा है करने के लिए? The king wanted to get answer of this question. This was the third question. The king thought that if he knew the answers of these 3 questions, he would never fail in anything. अब राजा सोचता था अगर मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए ना तो मैं कभी भी किसी चीज़ में फेल नहीं हो पाऊंगा. So he was so curious to know the answers of these 3 questions. Now second question is question number 2. We are going to do question number 2, and this is, why did the king go to these wise hermit? Why did he go there alone and dressed like a common man? Now the answer is, the king wanted to know the right answers of these 3 questions. We know it well that he was so curious to know the answer of these 3 questions, but he in his kingdom could give him, nobody can in his kingdom could give him satisfaction. Yes students, nobody was able to give the correct answers to the king, satisfactory answers. The king remained unsatisfied. He was not contented with the answers. वो संतुष्ट नहीं था क्या आंसर्स आ रहे हैं. So therefore means इसलिए he decided, उसने ये फैसला किया to go to the wise hermit. इसलिए वो इस बुद्धिमान साधु के पास गया to get his answers, अपने आंसर्स को पाने के लिए. Now the question is, why he dressed up like a common man? एक common man की तरह क्यों dressed up हुआ? He dressed up like a common man because hermit only met with the common people. You can write the answer in your own language class. Since the hermit used to receive only common people, the king decided to go there alone and dressed like a common man. अब जो common man होगा, एक आम आदमी होगा, वो अकेला ही आएगा और वो ड्रेस भी बिल्कुल एक आम, उसकी वेशभूषा जो उसके कपड़े होंगे, पहनावा होगा, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह होगा. सो द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट लाइक अ कॉमन मैन. Yes class, let's continue to revise our question number 3. Who was the bearded man? अब bearded आदमी कौन था? And who came running from the woods? जो कि जंगल में से, वुड्स में से, जंगल में से इतनी तेज़ी से भागता आया, वो who was that person? How had he got wounded? अब उसे इतनी चोट लगी हुई थी तो वो उसे कैसे लग गई थी? Now the bearded man, जो दाढ़ी वाला आदमी था, bearded means जो दाढ़ी वाला आदमी था, who came running from the woods, जो कि जंगल से भागता आ रहा था. The bearded man, दाढ़ी वाला आदमी जो जंगल से भागता आ रहा था, was the king's enemy. वो कौन था? राजा का एनिमी था, राजा का शत्रु था. Was the king's enemy. He had planned to kill the king on his way back home. On his way back home. उसने क्या प्लान किया था कि जब राजा अपने घर वापस आ रहा होगा तो मैं उसे मार दूंगा. Because he was king's enemy. But the king's
बॉडीगार्ड अटैक्ड हिम, लेकिन जो राजा के बॉडीगार्ड थे उन्होंने क्या किया, उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? whom अटैक्ड ऑन द bearded मैन? किंग्स बॉडीगार्ड्स। एंड ही गॉट वुंडेड, और इसीलिए उसे क्या लगी? चोट लगी। ही गॉट वुंडेड। देयर ही एस्केप्ड, किसी तरह से वो वहाँ से भाग गया। एंड रैन अवे, वो उनसे बच गया। उसे चोट बहुत आई लेकिन किसी तरीके से वो उनसे बच गया और रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड द बियर्डेड मैन want to kill the king? A bearded आदमी जो है वो राजा को क्यों मारना चाहता था? What was the reason behind? The bearded man wanted to kill the king because the later, अब इसमें लेटर वर्ड का मतलब है बाद वाला। बाद वाला मीन्स बाद में कौन है? बाद वाला किसकी बात कर रहे हैं? द किंग की। द फर्स्ट पर्सन वॉज द बियर्डेड मैन एंड द सेकेंड वॉज द किंग, सो द वर्ड लेटर इज यूज फॉर द किंग। द लेटर हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, अब जो राजा ने उसके भाई का मर्डर कर दिया था। एंड सीज्ड, और टेकन अवे, और उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसकी संपत्ति थी वो सारी प्रॉपर्टी राजा ने अपने पास रख ली थी, सीज्ड कर ली थी। एंड द बियर्डेड मैन वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज होता है स्टूडेंट्स बदला लेना। सो जो बियर्डेड मैन था वो बदला लेना चाहता था, किससे? फ्रॉम द किंग, राजा से बदला लेना चाहता था। दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू किल द किंग, इसीलिए वो राजा को मारना चाहता था। नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट टू रिवाइज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड डिगिंग ऑफ सीड्स ऑफ बेड्स, हाउ डिड डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द हर्मिट सेव द किंग्स लाइफ? अब जो किंग है उसने हर्मिट के लिए ग्राउंड को खोदना स्टार्ट कर दिया था। तो कहते हैं इस बात से राजा की जान कैसे बच गई? हाउ दीज बोथ द थिंग्स आर को रिलेटेड? सो लेट्स फाइंड द आंसर। द बियर्डेड मैन वॉन्टेड टू किल द किंग इन द जंगल। अब बियर्डेड मैन जो था, जो दाढ़ी वाला आदमी है, वो राजा को मारना चाहता था, वी नो इट वेल। बट द किंग गॉट बिजी इन डिगिंग बेड्स फॉर द हर्मिट, लेकिन राजा ने क्या किया? अब हर्मिट के पास जब गया तो ही फाउंड हर्मिट डिगिंग द बेड्स, डिगिंग द ग्राउंड, एंड द किंग डिसाइडेड टू हेल्प द हर्मिट। उसने ये फैसला किया मैं हर्मिट की हेल्प करूँगा, और बहुत पोलाइटली उसे हर्मिट की हेल्प की। इफ़ ही हैड नॉट डिसाइडेड टू हेल्प द हर्मिट, अगर राजा ने ये फैसला नहीं किया होता कि मैं साधु की हेल्प करूँगा, ही वुड हैव बीन किल्ड बाय द बियर्डेड मैन, तो राजा ने जो बियर्डेड मैन है उसके हाथों से मारा जाना था, पक्का मारा जाना था, बिकॉज वो वापस जा रहा होता और वो वहाँ पर छुपा हुआ था। दस डिगिंग बेड्स फॉर द हर्मिट सेव्ड द किंग्स लाइफ, इसीलिए जो राजा ने, जो किंग ने हर्मिट के लिए, साधु के लिए, हर्मिट मीन्स साधु, साधु के लिए जो बेड्स को, जो ग्राउंड को डिग किया, उसने राजा की जान को सेव कर लिया। द किंग्स लाइफ वॉज सेव्ड, द किंग्स, वी सी द किंग्स लाइफ वॉज सेव्ड, जो राजा की ज़िंदगी है वो बच गई थी। So I hope class that these question answers are quite clear to you, and I want you to learn them again, and while writing the answers please write in your own language, because आपको सारी story तो मालूम है। So while writing the answer write in your own language, it will help you in a better way. Thank you class for watching video.